Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are doing class 12th political science of ISC board. So first thing which I would like to tell you, that is, if you have not subscribed my channel, please do that so that you get a notification whenever we post a new video. And don't forget to press the like button, and please, if you have any doubts or queries, you can write down in the comment section. I would be happy to answer. And whether you are understanding or not, you can also write down in the comment section. And so we have already covered our previous chapters, like we have covered the chapter on judiciary. So you can go back and watch the videos on judiciary if you want to do that topic. We have also covered our chapter on local self-government. So if you have not watched that, please go back and do watch it. So today we are continuing with our chapter on fundamental rights. Fundamental rights is a very important topic. It is very crucial. So on fundamental rights, in our first video we discussed about the meaning of fundamental rights, like why are they called fundamental rights. Now in our second video we talked about right to equality, which is our very important fundamental right. And today we are going to talk about right to freedom, which is also a very important fundamental right. So in right to freedom we are going to talk about from article 19 to article 22. So इसमें यही समझने की आपको जरूरत है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 will be included in our right to freedom. So right to freedom हमारा एक ऐसा fundamental right है जो हमें मिला हुआ है, एंड हम सबके लिए फ्रीडम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अगर आपको राइट टू फ्रीडम को समझना है कि फ्रीडम का मतलब क्या है या राइट टू फ्रीडम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो उसके लिए हमें इन सारे आर्टिकल्स को समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट आर्टिकल, विच इज योर आर्टिकल 19. It says that it talks about the 6 fundamental freedoms. तो कौन सी ऐसी आपकी 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है, कौन सी 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो आपको राइट टू फ्रीडम में डिस्कस करी जाती है या जो राइट टू फ्रीडम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो द 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ आर्टिकल 19 आर, नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है जो कि आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर ही एक पार्ट फॉर्म करती है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, विच इज अ पार्ट ऑफ योर 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स. तो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने की और एक्सप्रेस करने की चीजों को फ्रीडम दी गई है. The second important thing is freedom of assembly. तो आपको असेंबली के लिए भी फ्रीडम दिया गया है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस. अगर आप किसी भी तरीके की एसोसिएशंस मनाना चाहते हो तो आपको उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. यू आर फ्री टू डू दैट. नाउ फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो, कहीं पे आना चाहते हो, तो आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल. तो आपको कहीं पे भी रिसाइड करने की फ्रीडम दी गई है और सेटल करने की, कि आप कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हो, तो ये वाली फ्रीडम भी आपको दी गई है. Sixth very important freedom is freedom of profession, occupation, trade और business. तो आपको फ्रीडम दी गई है कि आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके की ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके के ट्रेड को अपना सकते हो, किसी भी तरीके के बिजनेस को अपना सकते हो.
So these are the 6 fundamental freedoms which are very very important, and this is a major part of your Article 19. ठीक है, तो Article 19 बहुत ही ज्यादा important है whenever we are talking about right to freedom. तो आपको जब 6 fundamental freedoms समझ में आ गई, जो कि right to freedom का एक बहुत ही important component है. Now we are going to study Article 20. पहले हमने आर्टिकल 19 को समझ लिया, अब हम आर्टिकल 20 की बात करेंगे कि आर्टिकल 20 क्या कह रहा है. सो इट सेज दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन विच इज योर आर्टिकल 20. अब प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करना, बचाना. तो अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी का मतलब होता है नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन. आर्बिट्ररी का मतलब होता है बिना तर्क के, अगर हम कोई भी बात करते हैं बिना किसी रीजन के, सो दैट इज नोन एज आर्बिट्ररी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कन्विक्शन? कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन का मतलब होता है एक्शन ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो एक ऐसा एक्शन जिसके थ्रू हम ये बता पाते हैं कि ये इस इंसान ने ये वाला क्राइम किया है कि नहीं किया है, वेदर. तो ये जो एक्शन होता है कि फाइंडिंग समवन गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, सो दैट इज नोन एज कन्विक्शन. तो अब जो हमारे मतलब जिन लोगों से किसी तरीके का क्राइम हो जाता है, या फिर वो जो जब वो प्रोसीजर होता है कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये वाला बंदा गिल्टी है कि नहीं है, कि मतलब उसने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए उस इंसान को भी कई तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है. उसके बारे में हम बात करेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय द पीपल. इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन. आर्बिट्ररी कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी मतलब बिना किसी रीजंस के जो कन्विक्शन होती है, जैसे जो आपको कन्विक्शन का मतलब अगर उसको पनिशमेंट एक तरीके का कि जो एक्शन है गिविंग पनिशमेंट का, कि जब हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो बंदा गिल्टी है कि नहीं है, तो उसके दौरान या उसके बाद जब उसको पनिशमेंट मिल गई तो उसको किस तरीके की उस पर्सन को प्रोटेक्शन दी जाती है. सो बेसिकली इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझना चाहे तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल 20 है वो ये बात कर रहा है कि कैसे कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है अगर कोई बंदा मतलब कोर्ट में अगर वो किसी केस में फंस गया, या वो केस में वेदर दैट पर्सन इज प्रूव्ड गिल्टी और नॉट, दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट वो बंदे को किस तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है जिसके अगेंस्ट ये प्रूफ किया जा रहा है कि इसने ये ऑफेंस किया है कि नहीं किया है. तो बेसिकली उस बंदे के खिलाफ किस किस तरीके की उसको मतलब उसको किस किस तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट लेज डाउन दैट नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप किसी भी क्राइम के लिए गिल्टी प्रूफ हो गए, या फिर कोई भी XYZ इंसान वो गिल्टी प्रूफ हो गया कि उसने ये क्राइम किया है, तो उस क्राइम के लिए उसको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी. ये नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद आप बोलो कि इस क्राइम के लिए इसको पहले भी पनिशमेंट मिल चुकी है, इसको फिर से पनिशमेंट दे दो. सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि अगर आपने एक गलती करी तो उसके बाद आपको एक ही बार तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी ना, दूसरी बार तो उसकी सेम क्राइम की पनिशमेंट नहीं मिलेगी. तो इसी तरीके से बताया गया है कि आर्टिकल 20 है तो वो ये प्रोटेक्शन देता है अगर किसी ने भी कोई क्राइम किया है तो कि उसको एक ही क्राइम की एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, दो बार उसको उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी सेम क्राइम की. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो पर्सन accused of any offense can be forced to be a witness against himself
अक्यूज्ड का मतलब होता है चार्ज्ड विद अ क्राइम। तो नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी इंसान अगर उसको किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट, उसको मतलब एक क्राइम के लिए वो चार्ज किया गया, कि बोला गया कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है, इस इंसान ने ये क्राइम किया है, या इस पर्सन ने ये क्राइम किया है, सो दैट पर्सन, नो पर्सन accused of any offense can be forced to be a witness against himself. मान लो कि एक इंसान ने या एक पर्सन ने एक क्राइम किया है, अब उस पर्सन को आप ये नहीं बोल सकते कि आप अपने अगेंस्ट ही विटनेस दो, ठीक है, आप खुद ही अपने अगेंस्ट विटनेस दो, आप उस पर्सन को ये वाली चीज फोर्सफुली नहीं करवा सकते कि वो इंसान अपने अगेंस्ट ही खुद विटनेस दे। सो दैट इज a protection which is given under article 20, ठीक है। तो by constitution under article 20 तो ये प्रोटेक्शन उसको दी गई है कि कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने अगेंस्ट ही क्या दे, विटनेस दे। Another very important point is no person can be subjected to a penalty greater than that one which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offense। इसका मतलब ये है कि no person, कोई भी इंसान can be subjected to a penalty greater than the one which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offense। यानी कि अगर किसी पर्सन को बोला गया कि आपको किसी ने कोई क्राइम किया, तो उसको बोला कि आपको 5000 रुपीज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इस क्राइम की, तो ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट ने तो बोला कि 5000 पे करना है और उसके बाद उससे हम ले 10,000 ले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज नहीं हो सकती। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है हमारे आर्टिकल 20 में कि अगर किसी ने बोला कि 5000 की पेनल्टी आपको पे करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको 5000 का ही पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको बोलेंगे जी आप 10,000 का पे करो, जो कोर्ट ऑफ लॉ ने जो ऑर्डर दिया उसी के अकॉर्डिंग उसको वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल नंबर 20 है, दिस आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो अगर इमरजेंसी भी लग जाती है उस टाइम पर भी आपका आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता। किसी भी रीजन से अगर इमरजेंसी लगाई गई तो उसमें आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 20 के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो हर हाल में फॉलो की ही जाती हैं। आई होप these 2 points are clear to you. So as we are doing right to freedom, which is from your article 19 till article 22. So अब हम राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो राइट टू फ्रीडम में हमने आपका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 21। सो आर्टिकल 21 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है राइट टू फ्रीडम का। So whenever we talk about right to freedom, we are supposed to include this article. So article 21 आपका कह रहा है protection of life and liberty. तो आपको लाइफ की और लिबर्टी की प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 21 के अंदर। Now let us see what this article is saying, कि मतलब इस आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है वो हम पढ़ने वाले हैं। So the first point which we are going to talk about is no person shall be deprived of his life and liberty except according to procedure established by law। यानी कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से हम उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, उसकी लिबर्टी से, यानी कि लिबर्टी मतलब फ्रीडम, तो किसी भी पर्सन को हम उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते unless and until they have done something wrong except according to the procedure established by law। So अगर मान लो कि
लॉ के अंदर उसको किसी बंदे को फांसी की सजा सुनाई गई, तब तो उसकी लाइफ ली जा सकती है, अदरवाइज किसी की भी लाइफ नहीं ली जा सकती है। सो इसलिए नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो हर एक इंसान को प्रॉपर तरीके से लाइफ मिलेगी और लिबर्टी मिलेगी, और साथ ही साथ उनको जो लाइफ मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एकदम डिग्निफाइड होनी चाहिए। दैट शुड बी अ डिग्निफाइड लाइफ। Coming on to the very important amendment, that is your 44th amendment. तो अब देख रहे हैं कि 44th amendment के अंदर हमें क्या बताया गया है। So 44th amendment made it inviolable even during an emergency. अगर इमरजेंसी भी लग जाती है तो उस टाइम पर भी आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, जो बेसिकली आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी है, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है, तो वो वाली चीज कोई नहीं ले सकता आपसे, इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज योर 59th amendment. So under 59th amendment it has been stated that 59th amendment has laid down that this right can be suspended by the president. किसी स्पेशल केसेस में क्या हो सकता है, 59th अमेंडमेंट के अंदर इस वाले राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। जो आपका ये है ना प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला, इसको सस्पेंड किया जा सकता है इफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेज दैट। So now we are going to talk about some of the very important things which are included under Article 21. That is right to life and personal liberty under Article 21 involves several rights. तो कई तरीके के rights आपके Article 21 के अंदर दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से rights हैं, हम उसको पढ़ते हैं। So the first right which we are going to talk about is right to live with human dignity. तो आप कोई भी ह्यूमन बीइंग हो तो आपको ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने की आजादी एक तरीके से दी गई है कि आप ह्यूमन डिग्निटी के साथ मतलब रह सकते हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइट टू प्रिवेसी। सो आपको प्रिवेसी का राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 21. Another very important right is right to pollution free environment. So आपका जो environment है वो एकदम क्या होना चाहिए, pollution free, ये भी article 21 के अंदर बताया गया है। Another very important point is right against sexual harassment. So sexual harassment के again भी right आपको दिया गया है। So there are many other points, मतलब इसके total 16-17 points है। I have written only 4 points. So when इसको ज्यादा डिटेल में एक एक पॉइंट को नहीं हम पढ़ रहे कि कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 21 के अंदर, बट हमने जितने पढ़े हैं इसके बाद में आप एक्सेट्रा ऐसे करके लिख सकते हैं। So as we are doing right to freedom and we are studying article number 21. So coming on to Article 21A. So Article 21A, that is right to education of children. So यानी कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। So the 86th Constitutional Amendment. So जो आपका 86th Constitutional Amendment Act है 2002 का, has made free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years a fundamental right. So इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चे 6 से 14 years की एज ग्रुप के अंदर आते हैं उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो उनके लिए शिक्षा उनका अधिकार है, उनके लिए एजुकेशन दी जाती है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल which you are supposed to study and which you are supposed to learn by heart. So right to information act is not a fundamental right. So हम right to education तो आपका fundamental right है, लेकिन जो आपका right to information act है
कि किसी भी चीज के लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट. सो आपका जो प्रिवेसी का राइट है वो भी एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है. सो नाउ लेट अस सी दैट on 24th July 2017, Supreme Court of India ruled right to privacy as a fundamental right under Article 21. So Article 21 के ही अंदर right to privacy को एक fundamental right बताया गया है. So right to privacy is a fundamental right, but this right is subjected to reasonable restrictions which can be imposed under the provision of part 3 of the constitution. लेकिन right to privacy पे reasonable restrictions लग सकती हैं according to the under the provision of the part 3 of the constitution. I hope you have understood Article 21 well. So now we will be going to start with Article 22. So as we are doing right to freedom and we have already discussed Article 19, Article 20, Article 21. Now coming on to Article number 22. So today we are going to discuss the protection against arrest and detention, which is your Article 22. So Article 22nd of the Indian Constitution says that you have been provided protection against arrest and detention. तो अगर किसी भी तरीके का अरेस्ट किया जाता है, मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है या किसी इंसान को जेल में डाला जाता है, तब उसको किसी तरीके की मतलब कोई तरीके की उनको प्रोटेक्शन दी गई है. So that is your Article 22, which is a major part of your right to freedom. So it provides protection against arbitrary arrest and detention. तो arbitrary arrest और detention के लिए आपको क्या दी जाती है? प्रोटेक्शन दी जाती है. So क्या किस तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है? arbitrary means एक तरीके का unfair arrest बोल लो, या unfair नहीं भी बोलो तो बाकी तरीके का भी अगर कोई किसी भी तरीके का अरेस्ट है तो ये प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी. So it lays down that a person who is arrested and detained shall be, तो अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें उसको प्रोटेक्शन के रूप में दी जाती है वो हम पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट एंड शैल हैव द राइट टू कंसल्ट एंड be defended by a legal practitioner of his choice. So basically the first thing is informed of the grounds of his arrest. सबसे पहले तो जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ये बताया जाए कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है. अगर एक XYZ पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपको इस बेसिस पे इस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया. तो सबसे पहले तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है. आप बिना इन्फॉर्मेशन के किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड शैल हैव द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. तो उसके पास में ये एक राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है और डिफेंड कर सकता है अपने आप को ये प्रूफ करने के लिए कि वो गिल्टी नहीं है बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. तो बेसिकली अगर वो पर्सन किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को यानी कि किसी एक लॉयर को अपॉइंट करना चाहता है अपनी चॉइस के अपना केस लड़ने के लिए तो वो अपॉइंट कर सकता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेकेंड पॉइंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 hours of his arrest, excluding the time taken in journey from the place of his arrest to the court of magistrate. So basically 24 घंटे के अंदर वो इंसान कहाँ पेश होना चाहिए? मैजिस्ट्रेट के आगे, एंड देन मैजिस्ट्रेट उसको
मतलब मैजिस्ट्रेट के आगे वो जाएगा, उसको लेके जाना होता है जैसे ही 24 आवर्स के अंदर अंदर जब भी उनको अरेस्ट किया जाता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड सो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो लेकर जाएंगे, ये उनका ड्यूटी है. जो भी आपको अरेस्ट पुलिस ऑफिसर करके, किसी को भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेके जाते हैं तो वो उसको मैजिस्ट्रेट के आगे जरूर दिखाते हैं. मतलब वो फिर मैजिस्ट्रेट देखते हैं कि आपने क्या गलती किया या क्या हुआ जो भी. तो दीज वर योर 4 very important articles. That was Article 19, Article 20, Article 21 and Article 22, which constitutes a major part of right to freedom. I hope you have understood this topic well. If you have any queries or doubts, you can write down in the comment section. I would be happy to answer. And if you liked the video, then please press the like button. Please do press the thumbs up. And stay happy, stay healthy, keep studying. Do subscribe my channel so that you get a notification whenever we post a new video, and share it as well. Thank you.